Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, praise the Lord. आप सभी का स्वागत है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में। मैं पास्टर गणेश। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज का दिन हमें दिखाया। उसने अब तक उसकी कृपा में, उसकी दया में हमें और आप सभी, हमें विश्वास करते हो आप सभी लोग सुरक्षित हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। उसने आज का दिन हमें दिखाया, अब तक उसने सुरक्षित रखा। आप सभी का स्वागत है इस आज की फेसबुक लाइव में, आज की ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन चर्च में आप सभी का स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद कि उसने आज हमें फिर से मौका दिया उसके वचनों को आपके बीच में इस फेसबुक के ज़रिए अब तक पहुंचाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग देखें और आशीष पाए। सो आप सभी का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर राजेश, प्रेज द लॉर्ड सुवर्णा, प्रेज द लॉर्ड प्राजक्ता, प्रेज द लॉर्ड मनीषा, प्रेज द लॉर्ड अनीता, प्रेज द लॉर्ड दीप्ति यादव, प्रेज द लॉर्ड। So I'm so glad, I'm so happy, church, to be here once again on the Facebook Live. I would like to thank God first because He has given me another chance to share His word through this Facebook Live to the whole people who are watching me from right now. So first of all, I would like to thank God. So glory be to God. So be with me. Please share this video as you can. And let the people may see and be blessed through the word, through the message. And I believe many people we are going to be blessed with the message, because today I'm going to share about God is ready to fulfill your needs. परमेश्वर तैयार है तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आज का टॉपिक है, today's topic is God is ready to fulfill your needs. Hallelujah. Please write down today's topics and share this video, share your friend circles, share your groups, share it to your relatives, your friends, whoever, and let them watching today's message, because today's word, it came from the Lord, and I just want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि today you will know, God is ready to provide your needs, your whatever your requirement, your prayer, your needs, in your life is ready to provide in your life supernaturally. So be with me till the end. मेरे साथ अंत तक बने रहे ताकि आप वचन को समझे, सीखे और वचन के द्वारा आशीष पाए। हालेलुया। सो पिछले वीडियो के जरिए अगर आपने कोई आशीष पाया है आप आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, if you were blessed to the in spirit realm, in the physically, in the mentally, spiritually, financially, if you were blessed, so please share your testimony, share your experience with us, and let the glorified name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So God bless you, all of you. Please be with me. Hallelujah. La baroko ta shanda la bara di la rakote shekete la rababa. Okay, share this video as you can. Okay, praise the Lord Rupesh, praise the Lord Aisha Rajwansh, praise the Lord. Hallelujah, la barakoti shanda la barakotia. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord. Praise the Lord, Sister Roji Wendy's. Happy to see you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. So today, church, whatever I'm going to share today, whatever I'm going to share the word of God, this is experience of my life. Without experience I couldn't sharing the word of God, because whenever I get the revelation from the Holy Spirit, I applying in my life first, then I'm getting experience in my life, then after that I'm sharing His word, His revelation to the people church. Whatever I'm preaching, whatever, if you see my previous preaching, if you see previous messages, previous revelation, I did not get from the Google. I didn't get from the Google and any social media, and from not any man of God, many preachers. Whatever whenever I'm reading Bible, I'm listening from the Holy Spirit. I'm getting revelation from Him and just applying my life. And after that, I'm sharing to the people church. And I believe, church, without experience in my life, I couldn't share the word of God to the people church, because I know my God is ready to provide my needs. I know it, and you should know today, your God, my God, our God, who lives in the heaven church, who is on the throne, is ready to provide your needs.
Hallelujah. He's ready to provide supernaturally your need, supernaturally, church. He's ready to provide anything in your life, but you should understand before you get from the Lord. Hallelujah. आपको समझना है who is your God. आपको पता चलना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका परमेश्वर कौन है. Hallelujah. आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रभु क्या है, आपका स्वर्गीय पिता क्या है. Hallelujah. Hallelujah. So, are you ready to hear the word? So let's go to the word. Before we go to the word, let's do pray. Hallelujah. La barokota shekela raba dila raba la barokoti. आइए हम वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में मांगते हैं इस समय. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Holy Spirit Master. धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और धन्यवाद देते इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, आज के प्रभु इस फेसबुक लाइव के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, इस सारी चीज़ों के लिए, इन सेटअप के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद फिर से आपने मुझे मौका दिया तेरे वचनों को तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए पिता. प्रभु ये सारे वचन, हर एक शब्द प्रभु तेरे सामर्थ्य से और अभिषेक से भरकर प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचे पिता, और जो लोग इस समय देख रहे सुन रहे पिता, प्रभु उनकी आत्मिक आंखें खोल दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा को देखे, तेरे कानों, उनके कानों खोल ताकि तेरा आवाज सुने, उनके हृदय को प्रभु खोल दे प्रभु, और प्रभु उन्हें समझ के आत्मा ने जो वचन में उनके हृदय में बोने जा रहा हो पिता, वो उनके जीवन में 100 गुना 1000 गुना फल लाए यीशु के नाम में. और प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस सारी चीजों को, इस सेटअप को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, सारे इंटरनेट को, वाईफाई को प्रभु हर एक कैमरा प्रभु, लाइट्स, वायरिंग, हर एक सेटअप को, लैपटॉप को मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु. कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, कोई भी हिंड्रेंस ना आए, शैतान का कोई भी काम ना चले प्रभु. और प्रभु अंत से लेके प्रभु शुरू से लेके अंत तक प्रभु आप के नाम की महिमा, बिकॉज यू आर अल्फा एंड ओमेगा, यू आर बिगिनिंग एंड यू आर फिनिशर, यू आर हालेलुया. वी थैंक यू फादर गॉड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू मास्टर. Let your name be glorified with Lord, and hide me behind your cross. And Lord, not I'm speaking to your people, but you may speak to your people through me, Lord. Remove my words, remove my revelation, my imagination, and Lord, by the Holy Spirit, put your revelation, your word upon my mouth, O Father, upon my tongue, O Lord Jesus. And Lord, you may speak to your people through me, O Father. I worship you, Lord. Hallelujah. Lord, pour your anointing, pour your blessing, and let go your presence all over, everywhere, whoever watching from their houses, from their workplace. Lord, bless them, whoever watching right now, Father God, bless them supernaturally. Let your presence be hit their life, their body, their family to God, in the name of Lord Jesus. Lord, I thank you, Father God. Hallelujah. Lord, bless everyone who is watching me right now. In the name of Lord Jesus, I pray, Father. Let your name be glorified. Your name be glorified, Father God. In Jesus' name I pray. Amen, Lord. Amen. Come on. Hallelujah. So, praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Please share this video as you can. इस वीडियो को, आज के संदेश को ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग देख के वो आशीष पाएं. Hallelujah. So, I'm so glad, I'm so happy to be here once again. You know, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. So, today's topic is God is ready to fulfill your needs. God is ready to fulfill our needs, church. Hallelujah. Because He is our Father. He is our Heavenly Father. And we all are, you know, we all are children of God, church. We are children of Lord Jesus Christ. And He loves us so much, church. He loves us so much. Therefore, He is ready to provide our needs, church. He is ready to fulfill our prayer requests. He is ready to fulfill our needs, church. Whatever we require in the life, in the family, He is ready to give us, church. Hallelujah. Therefore, our God is given a Father. हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर. Amen. हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है. हमारा परमेश्वर ने आज तक, you know, if you see from the book of Genesis, from book of Genesis till to the book of Revelation, if you read the whole Bible, you can understand, church. You know, God from that time to till now, God is given, church. परमेश्वर दे रहा है. Still is given. Amen, Lord. Hallelujah. वो अभी तक वो हमें दे रहा है. वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है. Now you can see the outside. You can see the rain is comes. Hallelujah. The raining is outside. You can see outside. You know,
That is the blessings for the earth from the God church. God gives the air, God gives the sunlight, God gives everything, whatever we require on the earth church. Hallelujah. Therefore church, इसलिए हमें ये समझना है कि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे पिता के पास, मेरे बाप के पास, मेरे अब्बा खुदा के पास वो क्या है जो हमें दे सकता है। He is ready to give everything. तैयार है सब कुछ देने के लिए। Hallelujah. But just I want to tell you, are you ready for to receive from the Lord? Hallelujah. क्या आप तैयार प्रभु से लेने के लिए? Let's we go to the word. आइए हम वचन में जाते हैं। Hallelujah. La baronda shadila raba. Dila raba baba bakoti la rehebela. Dele rehi andila raba da shokotila. Hallelujah. Hallelujah. So, thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Okay. So, are you here? Are you ready, church? क्या आप तैयार हो? Okay. See, let's go to the word, book of Psalm, chapter 67. Just small word I just want to read for you. Psalm chapter 67, भजन संहिता, भजन संहिता 67वां अध्याय, Psalm 67 verse 7. See, just want to read for you. भजन संहिता verse 7. See, I just want to read for the A part. You know, Psalm 67 verse 7, it says, God shall bless us. परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर हमको आशीष देगा. Hallelujah. Here we see, just want to read the A part of the Psalm 67 verse 7, it says, God shall bless us. परमेश्वर हमको आशीष देगा. हालेलुया. इस वचन के द्वारा हम देखते हैं चर्च कि परमेश्वर हमें आशीष देगा. परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा. परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा. परमेश्वर आपको आशीष देगा. बट क्वेश्चन इज कब तक? सवाल यह है कब तक? हालेलुया. कम ऑन, कब तक? कहिए मुझे, कब तक? बाइबल कहता है कि भजन संहिता 67:7 it says कि God shall bless us. परमेश्वर हमको आशीष देगा. कब तक? कब तक? Just I want to read. Let's we go to the word, the book of Joshua chapter 5. Joshua chapter 5. यहोशू किताब 5वां अध्याय. जल्दी. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Joshua chapter 5. See, verse 12. Just I want to read in English first. Then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land, and the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that you hear. Hallelujah. So, here we see, I just want to read in Hindi. मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताना चाहता हूँ. और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन के बिहान को मन्ना बंद हो गया और इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया. हालेलुया. सो इस वचन में देखते चर्च, अभी मैं जैसे सवाल पूछा कि परमेश्वर, भजन संहिता 67:7 कहता है गॉड शैल ब्लेस अस, परमेश्वर हमको आशीष देगा. सवाल ये है कब तक? हालेलुया. कब तक परमेश्वर हमें आशीष देगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस यहोशू के 5वें अध्याय 12 वचन में कि हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र से, इजिप्ट से, गुलामी से जब बाहर आ गए, उन्होंने जैसे लाल समंदर को पार किया. हालेलुया. बाइबल कहता है कि लाल समंदर को पार करने के बाद जब वो जंगलों में घूम रहे थे, परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय मन्ना, मतलब स्वर्गदूतों का खाना मन्ना उनको खिलाना शुरू किया. परमेश्वर ने स्वर्ग से उनको मन्ना खिलाया. हालेलुया. परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना को पृथ्वी पर भेजा. किसके लिए? इस्राएलियों के लिए. बाइबल कहता है जैसे उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, द मोमेंट दे क्रॉस द रेड सी, God poured the manna from the heaven, church. Hallelujah.
hallelujah, God gave some manna to the Israelites. Amen. And till they reached to the promised land, God providing manna every day, church. Hallelujah. वचन कहता है कि जब तक वो प्रॉमिस लैंड वाचा के देश में, मतलब कनान देश में नहीं पहुंचे, तब तक परमेश्वर उनको हर दिन स्वर्गीय भोजन, स्वर्गीय मन्ना से उनको मन्ना दे रहा था। वचन कहता है यहोशू, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 12 says, जिस दिन उस देश की उपज, कौन से देश की उपज? कनान। हालेलुया। The moment they ate the produce, the Bible says the produce of the land, and the children of Israel no longer had manna. You know what they ate? After they had eaten the produce of the land. Hallelujah. After they had eaten produce of the land, उस कनान देश में जब पहुंचने के बाद कनान देश का उन्होंने कनान देश की उपज में से और प्रोड्यूस में से उन्होंने क्या किया? खाया। बाइबल कहता है जैसे उन्होंने उस देश की उपज खाया, मन्ना उसी दिन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। मन्ना वो आना बंद हो गया, मन्ना स्वर्ग से गिरना बंद हो गया। हालेलुया। मतलब जैसे वो लाल समुद्र को पार करने के बाद उस दिन से लेके वो प्रॉमिस्ड लैंड पहुंचने तक हाउ मेनी इयर्स? 40 इयर्स, 40 साल वो जंगल में वो क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने 40 वर्ष इस्राएलियों को मन्ना खिलाया। कब तक? जब तक वो प्रॉमिस लैंड, अपने वाचा के देश में ना पहुंचे। अभी मेरा सवाल है कि परमेश्वर, अभी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है कि परमेश्वर आपको कब तक आशीष देगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई आस्क्ड टू गॉड व्हाई। प्रभु, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कब तक तू मुझे आशीष करेगा? कब तक तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा? कब तक तू, मैं जो मांगूंगा तू मुझे देगा? परमेश्वर ने ये वचन के द्वारा मुझसे बातें की। कम ऑन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा बातें किया। क्या बातें किया? जब तक इस्राएल लोग उस कनान देश की उपज में से नहीं खाए थे, तब तक परमेश्वर उनको मन्ना खिलाया। और जिस दिन उन्होंने कनान देश की उपज में से खाए, मन्ना बंद हो गया। हालेलुया। मन्ना क्या हो गया? बंद हो गया। The manna is representing, the blessings from the heaven church, representing the needs fulfillment from the heaven church. Hallelujah. मन्ना दर्शाती है परमेश्वर की स्वर्ग से आशीष आते हुए। मन्ना दर्शाती है जो हमारी जरूरत को पूरा करते हुए। Hallelujah. मन्ना जो स्वर्ग से उतरा है। Bible says that all the good things come from the above church. हर एक उत्तम बातें ऊपर से आती है। Amen, Lord. Hallelujah. Blessings come from the above. Healing comes from the above. Prosperity comes from the above church. चंगाई ऊपर से आती है, आशीष ऊपर से आती है, समृद्धि ऊपर से आती है, शांति ऊपर से आती है। Hallelujah. This all is, the blessings. It comes from the above church. It comes from the heaven. ये सारी आशीषें, ये सारी चीजें आशीष है जो स्वर्ग से हमारे लिए आती है। Amen. बाइबल कहता है जब इस्राएल लोग कनान देश में पहुंचे और उस देश की जमीन से उगी हुई चीज उन्हें जब खाया, मन्ना जो स्वर्ग से हर दिन गिरता था, वो बंद हो गया। हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु में आपको कब तक आशीष मिलेगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आप प्रॉमिस्ड लैंड यानी स्वर्ग में नहीं जाते हो, तब तक परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। Until you will not reach into heaven, may God provide every day your needs in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Come on, say after me, Amen, Lord. Hallelujah. कब तक मेरी जरूरतें पूरी होती रहेगी? जब तक तुम स्वर्ग में नहीं पहुंचते। Because, Hallelujah. क्योंकि हम इस पृथ्वी पे जी रहे और हम इस पृथ्वी पर रहकर हम उस परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, उस अब्बा खुदा की ओर देख रहे हैं जो स्वर्ग में है, और हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रभु मुझे हर दिन की रोटी हमें दे। बाइबल कहता है, जैसे मत्ती के 5वें अध्याय में आगे पढ़ोगे, the Lord's Prayer is written in the book of Matthew chapter 5. If you read the word, Bible says, Lord, Father, give us our daily bread. वचन कहता है प्रभु हमें हर दिन की रोटी हमें दे। Come on, hallelujah. हर दिन की रोटी हमें दे। What does mean, church?
doesn't mean the Bible says about only bread. You need whatever you require. You have to ask to your Father who lives in the heaven, church. You have to pray to God who lives in the heaven, church. He is ready to provide. He is ready to fulfill your needs every day in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Believe what I'm saying, church. Amen. और तुम्हारी हर एक जरूरत है, हर दिन तुम्हारी पूरी करेगा, तुम्हारी हर दिन की जरूरत है। हालेलुया। Just I want to tell you, मैं आपको सवाल पूछ रहा था, क्या आप जैसे कितने लोग हैं कि एक दिन भूखा रहे, आप भूखे रहे हो, आपके घर में खाना नहीं है, आपके घर में अनाज नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, अगर कोई आप में से है तो मुझे प्लीज बताइए चर्च। हालेलुया। नो, जिस दिन आप जिस दिन आप हर दिन आप जब उठते हो, नींद में से उठते हो, सबसे पहला परमेश्वर तुम्हें एक जिंदगी, एक नया जीवन देके आशीष करता है। Hallelujah. Hallelujah. Every early morning when you wake up, church, God bless you, bless you with the new life. परमेश्वर तुम्हें हर दिन नया जिंदगी, नया जीवन देके आशीष करता है, सबसे पहला। हालेलुया। अगर परमेश्वर तुम्हें नया जिंदगी, नया जीवन देके आशीष करता है तो तुम्हारी दिन भर की सारी जरूरतें सुपर नेचुरली परमेश्वर पूरा करेगा, अलौकिक रीति से पूरा करेगा यीशु के नाम में। हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, चर्च? बी विथ मी, मेरे साथ रहिए। आमेन लॉर्ड। कम ऑन। कब तक तुम्हारी जरूरतें पूरी होगी? जब तक तुम प्रॉमिस लाइन में नहीं पहुंचते। व्हाट इज द प्रॉमिस लाइन? दैट इज द हेवन, चर्च। हालेलुया। As we are following Lord Jesus, as we are carrying our cross daily, church, that means we are following Jesus, we are following life, we are following a provider. Hallelujah. Hallelujah. We are following provider, church. मैं उस पूरा करने वाले के हम पीछे चलते हैं। हम दिन भर हर दिन प्रभु के विश्वास करते हैं, हर दिन प्रभु के पीछे चलते हैं, हर दिन अपने क्रूस को लेके चलते हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम जीवन के पीछे चल रहे हैं, हम आशीष के पीछे चल रहे हैं। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। Come on. तुम्हारी जरूरत है परमेश्वर पूरी तरह से करेगा। Come on. Hallelujah. Just I want to tell you, पतरस मच्छी पकड़ने वाला था। Peter was a fisherman. He had a business. The every day catching the fish. He just catching the fish. But one day he didn't catch any single fish. Hallelujah. He did whole night. He done a hard work in whole night, church, but he didn't catch one single fish, church. But next morning, very early morning, Jesus came to Peter, and Jesus, entered in the Peter's boat. Hallelujah. Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूँ. Okay, let me speak in Hindi because many people don't know about English. Okay, thank you, Father. हम देखते हैं कि पतरस एक बिजनेसमैन था, मछुआरा था, मछलियों को पकड़ने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और वो हर दिन मछलियों को पकड़ के मछलियों को बेच के अपना बिजनेस करता था, चर्च। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक रात को जब वो मछली पकड़ने के लिए गया, उसने एक भी मछली उसको नहीं मिली, एक भी मछली नहीं मिली। और सुबह वो जाल को धो रहा था। सुबह जब वो मछली उनको एक भी मछली उनके हाथ को नहीं लगी, और निराश होकर जब वो आ गए और अपनी नाव में जालों को धो रहे थे, क्योंकि एक भी मछली वहां पे नहीं मिली थी। वो अपने जालों को तैयार कर रहे थे, जालों को लपेट कर रख रहे थे। बाइबल कहता है कि सुबह वहां पे यीशु मसीह आया, वहां पे प्रभु यीशु आया, और यीशु मसीह ने पतरस की नाव में प्रवेश किया, पतरस की नाव पर चढ़ा, और उसने वहां पे प्रचार करना शुरू किया, वहां पे उपदेश देना शुरू किया, वहां लोगों को वचन बताना शुरू किया। और जब उसने पतरस की ओर देखा तो पतरस का मुंह निराशा था, उसका चेहरा निराशा में था, वो मायूस था, क्योंकि एक भी मछली उसको नहीं मिली थी, ताकि वो उस दिन की जो उसका बिजनेस करने का था, उस दिन को जो उसका काम करने का था, उस दिन उसको जो पैसा कमाने का था, उसके लिए एक भी मछली उसको नहीं मिली। और जब प्रभु ने पतरस को देखा, चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च, आई एनकरेजिंग यू, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, don't give up in your life, don't feel bad when you nothing you get anything in your life, church. अपने आप को दुखी मत करो, अपने आप को बुरा मत महसूस करो कि अगर आपको कुछ मिलता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, चर्च, कि पतरस से जब यीशु मसीह ने जब पतरस के मुंह को देखा, चेहरे को देखा, पतरस निराश था। वो वचन तो एक जगह पे सुन रहा था, लेकिन उसके अंदर निराश थे, उसके हृदय में निराश था, कोई एक भी मछली उसको नहीं मिली।
एक भी मछली उसको नहीं मिली। लेकिन प्रभु ने जब उसको देखा, पतरस को कहा, पतरस अपनी दाहिनी ओर, पुट द नेट्स एट योर राइट हैंड। उसने कहा, प्रभु, पतरस को कहा, पतरस अपनी दाहिनी ओर तू जाल को डाल दे, हालेलुया, ताकि तू मछली पकड़े। आई वांट टू टेल यू चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस ने कहा, प्रभु हमने रात भर मछली पकड़ी, एक भी नहीं हमें मिली। पतरस क्या करना चाहता था वहां पे यीशु मसीह को? पतरस ये कहना चाहता था, प्रभु मछली रात को पकड़ी जाती है, दिन को नहीं। कम ऑन, हालेलुया। मछली रात को पकड़ी जा सकती है, दिन को नहीं। समझ में आ रहा है चर्च? क्योंकि दिन के उजाले में मछली है, पानी की सतह पर, पानी के ऊपर नहीं आती है चर्च। इसलिए पतरस वहां पे यीशु मसीह को एक कहना चाहता है कि प्रभु हमने रात भर मछली पकड़ी, एक भी मछली हमें नहीं मिली। दिन में तो मछली पकड़ना, मछली आना असंभव है, दैट इज इम्पॉसिबल। हालेलुया। प्रभु ने कहा, नहीं तुम जाल डाल। पतरस ने कहा, अगर प्रभु ठीक है प्रभु, तू कहता है तो मैं जाल डालता हूं। समझ में आ रहा है? पतरस ने कहा, तू कहता है तो मैं क्या करता हूं? जाल डालता हूं। अब पतरस ने दाहिनी ओर जाल डाला, दाहिनी ओर जाल डाला। बाइबल कहता है जब उसने जाल डाला, मछलियां उस जाल में आ गई चर्च। और इतनी सारी मछलियां आई कि जाल फटने लगी और पतरस ने वो मछलियों को अपनी नाव में भर लिया। हालेलुया, नाव में भर लिया। अब बाइबल कहता है कि उस दिन के लिए यीशु मसीह ने पतरस को मछलियों के द्वारा आशीष किया चर्च। अब प्रभु ने कहा कि आज जैसे तू आज मछली पकड़ने वाला है, मैं आज से तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जो ब्लेसिंग्स तेरे जीवन में आई है, आज से तेरे जीवन के द्वारा औरों के जीवन में, दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग्स आने वाली है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं ब्रदर एंड सिस्टर, जिस क्षण तुम्हारे जीवन में आशीष आती है, परमेश्वर तुम्हें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। हालेलुया, दैट्स अ रेवलेशन, रिसीव इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पहला चमत्कार करता है, तुम दूसरों के लिए चमत्कार के कारण बनते हो यीशुआ के नाम में। दैट्स अ रेवलेशन। कम ऑन, आमेन लॉर्ड, रेबादा खोतो शिखिला। हालेलुया। The moment God blessed the moment God does miracle in your life, in your family, afterward, God making you a blessings, a miracle for the people, others, for the other church. Hallelujah. परमेश्वर दूसरों के लिए आपको आशीष का कारण बनाएगा। जिस क्षण तुम्हारे शरीर में चंगाई मिली, तुम्हारे द्वारा दूसरों को चंगाई मिलने वाली है यीशुआ के नाम में। हालेलुया। जिस क्षण तुम्हें प्रभु ने फाइनेंशियल ब्लेस किया, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर दूसरों को फाइनेंशियल ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। जिस क्षण परमेश्वर तुम्हारे जीवन में चमत्कार किया, उसी दूसरे क्षण प्रभु तुम्हें दूसरों के लिए चमत्कार का कारण बनाएगा। हालेलुया। What Jesus said to the Peter, क्या प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, पतरस तू मछली पकड़ने वाला, आज से तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। हालेलुया। That's a revelation, church. That means, our God is ready to provide our needs. He's ready to provide everything, whatever we require in our life, in the name of Lord Jesus. Amen. But are you ready for that? Are you ready for that? Many people, many believers, even many Christians, they're putting the faith on Lord Jesus only for their requirements, to fulfill their requirements, to provide their requirement, to bless in their life, in their family also. They doesn't want to be a blessing for the other church. Many Christians, many believers, they doesn't want to be a blessings for the other. They doesn't want to be a miracles for the others. They doesn't want to be one of the channel to bring people into the Lord. Hallelujah. बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि दूसरों को प्रभु में लाने वाले एक माध्यम नहीं, एक जरिया नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि वो चाहते कि नहीं, मेरे जीवन में आशीष आना चाहिए, मुझे आशीष मिलना चाहिए, मुझे मेरे जीवन में चमत्कार होना चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ब्रदर सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जिस क्षण तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता है, उसी क्षण परमेश्वर तुम्हें दूसरों के लिए चमत्कार का कारण बनाता है। हालेलुया। जिस क्षण, जिस दिन प्रभु तुम्हारे जीवन में चंगाई देता है, उसी दिन प्रभु दूसरों के लिए तुम्हें चंगाई का कारण बनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह जब गन्नेसरत की झील को पार किया, हालेलुया,
you know, he just crossed the lake of the Gennesaret, you know, उन्होंने जब वो झील को क्रॉस किया, एक जगह पे वहाँ पहुंचे, वहाँ पे एक आदमी था, एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी. Hallelujah. The army of devil was inside of the one man. Hallelujah. Just I want to tell you. And Jesus delivered him. You know all the scripture. आपको पता है कि यीशु मसीह ने उसको पूरी तरह छुटकारा दिया. यीशु मसीह ने उसको आजादी दी, उसको चंगाई दी, उसको पूरी तरह छुटकारा दिया. जो कब्रों के बीच में जीता था, कब्रों में चलता था, प्रभु ने उसको छुटकारा दिया. उसके अंदर से 2000 दुष्ट आत्माएं निकाली. अब बाइबल कहता है वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास विनती की है कि प्रभु मुझे तेरे साथ रहने दे. उसने he requested to Jesus, please allow me to be with you. But what Jesus said to him, क्या यीशु ने कहा कि no, go to your house, go to your village and tell how God has done in your life. Tell to the people, tell the whole village, you know, tell them and testify the Lord, testify the name of the Lord, testify the name of the God, and tell them how God has done in your life. परमेश्वर तुम तेरे जीवन में क्या किया, लोगों को जाके बता. हालेलुया. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या चर्च? इसका मतलब है कि प्रभु ने उसके जीवन में चंगाई दी है, छुटकारा दिया है. उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु चाहता है कि लोगों तक, उसके गांव में ऐसे कितने लोग तकलीफ में होंगे, ऐसे कितने लोग प्रॉब्लम में होंगे, उनको जाके बताना है, उनको जाके कहना है चर्च कि जाओ अब देखो प्रभु ने कैसा मेरे जीवन में कार्य किया. इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करता है तो प्रभु आपके द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. How do you understand, church? How do you understand? मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ. If you read the book of John, you know chapter 4, अगर आप यूहन्ना के चौथा अध्याय पढ़ोगे, इस वचन में जब यीशु मसीह एक सामरी स्त्री के पास आता है और जब वो पानी निकाल रही रहती कुएं में से, यीशु मसीह उसके पास पानी मांगता है, you know, तो वो स्त्री बोलती है कि तेरे पास गुरु, तेरे पास तो ना पानी निकालने के लिए ना कोई बर्तन है और तुझे कुआं तो बहुत गहरा है, तुझे पानी किसने दिया? प्रभु कहता है मेरे पास जो ऐसा पानी है, you know, वो पानी अगर जो पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा. उस स्त्री ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा पानी दे, वो पानी मुझे चाहिए ताकि इतने दूर से यहाँ पे पानी लेने के लिए ना हो. यीशु ने कहा जा अपने पति को बुला के लेके आओ. उस स्त्री ने कहा मेरा पति नहीं है. प्रभु कहता है हाँ तू ठीक बोली, तेरा पति नहीं है, क्योंकि जिसके साथ तू रह रही, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति नहीं है. वो अचंबा हो गई. और द मोमेंट जीसस said about her, describe about her, she got the deliverance. उसको छुटकारा मिल गया. और उसने क्या किया? अपने गांव में गई और लोगों को बताई. उसने सारे लोगों को बताई, देखो कोई भविष्यवक्ता आया है, एक मसीहा आया है जिसने मेरे बारे में सब कुछ बताया, आके देखो. और उसने पूरे गांव को अपने पास लेके आया, यीशु मसीह के पास लेके आया. बाइबल कहता है कि यीशु मसीह वहां पे 2 दिन रहा. यीशु मसीह कुछ दिन वहां रहा, उसने प्रचार किया, बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, बहुत सारे लोगों को छुटकारा दिया. मतलब एक स्त्री के जीवन में जब छुटकारा आया, उस स्त्री के वजह से पूरी गांव को क्या मिला? आशीष मिला. और एक स्त्री पूरे गांव के लिए आशीष का कारण बनी. Come on. Hallelujah. Don't say, oh, I'm a woman, pastor, I'm a woman, how can I do? Pastor, I'm a girl, how can I do? Pastor, I'm unmarried, pastor, I'm married, I have children, I'm a daughter of law, I'm a, you know, I have family, I have children, I have husband. What, you know, how can I do for the Lord? I want to tell you, church, one deliverance, your whole life will be changed. Come on. One encounter with Lord Jesus, your whole life will be changed, church. The moment you receive the blessings from the Lord, God expecting from you to be a blessings for the others. Come on. Hallelujah. How do you understand what I'm saying? The moment you get the healing in your body, God expecting from you to be a healing for the others. तो आप जिस क्षण पे आपको चंगाई मिलती है, जिस क्षण आपको आशीष मिलता है, परमेश्वर आपसे आशा करता है, उम्मीद करता है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए चंगाई का कारण बने, दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बने. क्यों प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है? क्योंकि आप दूसरों के लिए जरिया बने, माध्यम बने. Come on. इसी रीति से हम प्रभु का वचन, प्रभु का ब्लेसिंग, प्रभु की सामत हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं.
ओके, इस वचन में हम देखते हैं कि यहोशू भाई 5वां अध्याय 12वां वचन में कहता है कि जब तक इस्राएली लोग कनान देश, वाचा के देश, प्रॉमिस लैंड में तब तक नहीं पहुंचे, जब तक नहीं पहुंचे, परमेश्वर हर दिन उनकी जरूरतों को पूरा करता गया। हर दिन उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाते गया। हर दिन प्रभु उनके साथ रहा। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको पूछा है तो कब तक परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा? कब तक प्रभु तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा? मैं आपसे कहता हूं, वचन कहता है चर्च कि जब तक आप स्वर्ग में नहीं पहुंचते हो, जब तक आप प्रभु के पास नहीं जाते हो, परमेश्वर हर दिन तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। माय गॉड इज रेडी टू फुलफिल योर नीड्स एवरी डे चर्च। ही इज रेडी टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। ही इज रेडी टू फुलफिल योर चिल्ड्रंस नीड, योर हस्बैंड्स नीड, योर ब्रदर्स नीड, योर मदर्स नीड, योर पेरेंट्स नीड, whatever, whoever has needs, my God is ready to fulfill their needs, church. Come on, hallelujah. He is ready to fulfill your needs. कब तक? जब तक आप स्वर्ग में नहीं जाओ, जब तक आप उस promised land. What is the promised land? Right now in the New Testament, what is the promised land? The New Testament is the promised land is the heaven, church. In the Old Testament, the promised land, it was, the Canaan nation, the land. Hallelujah, hallelujah. अगर परमेश्वर एक देश से दूसरे देश, जमीन से जमीन पर जाने के लिए अगर परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो सोचिए चर्च, हम जमीन से स्वर्ग में जाने के लिए परमेश्वर आपकी हमारी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करेगा? Come on, hallelujah. Have you understand, church? Wow, that's how our God is. I don't know, I'm so excited in the spirit, church, because I knew it. Who is my God and how is my God? Hallelujah. I'm so excited. Amen. I'm so excited, church. अगर इज़राइली लोग एक देश से, मिस्र देश से लेके कनान देश, प्रॉमिस लैंड में एक जमीन से लेके जमीन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर उनको स्वर्ग से उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो सोचिए चर्च, हम पृथ्वी से लेकर स्वर्ग में जाने के लिए हर दिन हमारी जरूरतें पूरी क्यों नहीं करेगा परमेश्वर? Come on, hallelujah. Are you understand what I'm saying? Amen. Because in the Old Testament, Israelites, they're passing from one nation to another nation, for the fulfill the purpose of God. Hallelujah. But in the New Testament, by Lord Jesus, we are passing from earth to heaven to live, to stay in the house of God. Therefore, our God is ready to fulfill our needs every day, church. हम पृथ्वी से लेकर स्वर्ग में परमेश्वर के घर में रहने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पासिंग कर रहे हैं, हम क्रॉस करने वाले, पास होने वाले चर्च। इसलिए परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरा करेगा। तो तुम्हें आत्मिक सामर्थ, तुम्हें वरदान, अभिषेक, नॉलेज, रेवलेशन, वर्ड, विजन, दर्शन, सामर्थ, विश्वास, तुम्हारी जरूरतें, खाना, कपड़ा, सब कुछ हालेलुया, सब कुछ देगा चर्च। How do you understand what I'm saying? Amen, Lord. Amen. He is ready to provide everything. But are you ready to receive from Him? Hallelujah. Just I want to tell you, how shall we get the blessing from the Lord? कैसे हम परमेश्वर से आशीष पाए? I just want to tell you, the moment you know the revelation of the Word, you know the character of God, you know how God is working, moment you got know about that, you will receive the power, you will receive the blessing from the Lord. Come on. Hallelujah. Many believers, they couldn't understand. Many believers, they doesn't understand. Church, इसी तरह से जब तक तुम स्वर्ग नहीं पहुंचते, वाचा के देश में नहीं पहुंचते, तब तक तुम्हारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। Amen. Say after me. Say after me, church. Confess on yourself. Confess on your family. Confess upon your children. Confess upon your family. Confess upon your dear ones. Hallelujah. अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने प्रियजनों के ऊपर घोषणा करें कि जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परमेश्वर हर दिन
हमारी जरूरतों को पूरा करेगा यीशु के नाम में। कम ऑन, से आफ्टर मी, until we are not reached into heaven, our God will provide, fulfill our needs every day. Say after me, church. Come on, कहीं मेरे पीछे, जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परमेश्वर हमारी जरूरतों को हर दिन पूरा करेगा यीशु के नाम में। Hallelujah. Every day you have to confess. इसलिए प्रभु के वचन में भी, प्रभु की प्रार्थना में भी प्रभु ने यही कहा, God, give us our daily bread. Father, give us our daily bread. Why Jesus said in that prayer? Do pray like this? क्यों प्रभु ने कहा इस तरह उस प्रार्थना में ऐसी प्रार्थना करने के लिए कि हे पिता, हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब तुम्हें मांगना है, तुम्हारी दिन की जरूरतों को, तुम्हारी जो तुम्हारी नीड्स है, तुम्हें जो चाहिए मांगना है, प्रभु तुम्हें देगा। प्रभु तुम्हें देगा। Problem is, many people don't know how to ask. Many people don't know how to ask from the Lord, from the heaven, from the God. बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कैसे मांगना है। जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाते, तब तक परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। गुड प्रिया जादव, गुड प्राजक्ता, God bless you. हालेलुया। तब तक परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमेन। आप हर दिन प्रभु आपको नया दिन दिखाता है, ये सबसे पहला आशीष है। अब जब आप नींद में से आंख खोलते हो, जब आंख खोलते हो, एक नया दिन देखते हो, ये सबसे पहला परमेश्वर तुम्हें आशीष देता है। अगर वो जिंदगी एक नया जीवन दे सकता है, एक नया दिन आपको दिखा सकता है, तो उस दिन के लिए लगने वाली जरूरतें प्रभु आपको पूरा करेगा। आमेन। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसा क्या देना चाहता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को स्वर्गदूत का अलौकिक खाना मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को स्वर्गदूत का खाना खिलाया। हालेलुया। एक साधारण मनुष्य, इंसान, उन्होंने स्वर्ग की अलौकिक चीज, सुपरनैचुरल फूड, they ate the Israelites, the normal natural man, they ate the supernatural foods which is came from the heaven. Come on, hallelujah. जो स्वर्ग से आया हुआ अलौकिक मन्ना, एक साधारण, एक नेचुरली, एक नैसर्गिक रीति से जीने वाला व्यक्ति, मतलब आप और हम जैसे एक नेचुरल जिंदगी जीते, उस जिंदगी जीने वाले लोगों ने परमेश्वर के स्वर्ग का अन्न खाया, मन्ना खाया। अगर परमेश्वर पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग का खाना दे सकता है, इन द ओल्ड टेस्टमेंट चर्च, वी आर लिविंग इन द न्यू टेस्टमेंट चर्च, हम नए नियम में हम जी रहे हैं। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चल रहा है? ओके, हालेलुया। सो अलौकिक दुनिया का अलौकिक खाना, that's a revelation I want to tell you church। अलौकिक दुनिया का अलौकिक खाना मन्ना को एक लौकिक दुनिया के लौकिक मनुष्य को खिलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, a supernatural food God gives, God given to the natural people church। A supernatural food God given to the natural people. Hallelujah. The supernatural food, in the supernatural word, the manna, it came from the supernatural world. मन्ना जो अलौकिक दुनिया से आया, मतलब स्वर्ग से आया। स्वर्ग, heaven is a supernatural, स्वर्ग अलौकिक है। Amen। स्वर्ग क्या है? अलौकिक है। बाइबल कहता है कि अलौकिक दुनिया का अलौकिक खाना मन्ना एक लौकिक, इस पृथ्वी के, इस दुनिया के लोगों को दिया गया, खिलाया परमेश्वर ने इन द ओल्ड टेस्टमेंट, और नए जुने नियम में।
अगर परमेश्वर ने जुने नियम में अलौकिक दुनिया का खाना एक लौकिक एक नेचुरली लोगों को खिला सकता है, तो चर्च हम नए नियम में जी रहे हैं, हम अनुग्रह के समय में जी रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हुए लोग हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग के वारिस बन गए हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन का अधिकार हमने पाया है, हम यीशु मसीह के द्वारा हमें वो महिमा में मिली है। तो चर्च हम यीशु मसीह के नाम में हमारे अलौकिक परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो सृष्टि करता है, वो आपकी और मेरी जरूरतों को हर दिन पूरा क्यों नहीं करेगा यीशु के नाम में। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर परमेश्वर जो स्वर्ग में जुना नियम में उस समय यीशु मसीह उनके लिए नहीं मरा, चर्च बस यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए मरा इस नए नियम में। कम ऑन, अगर परमेश्वर जुना नियम में उनकी जरूरतों को स्वर्ग से पूरा कर सकता है, तो नए नियम में परमेश्वर आपकी जरूरतों सबसे ज्यादा पूरा करेगा यीशु के नाम। आई डोंट नो अबाउट यू, मैंने संडे को भी मैंने कहा, मैंने जो मांगा मुझे मिला, और जो मैं मांग रहा हूं मुझे विश्वास है वो मिल चुका है। कम ऑन, हालेलुया। जो मैंने मांगा मुझे मिला, और जो मैं मांग रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु के पास में मांग रहा हूं, वो मुझे मिल चुका है। That is my faith. Amen. That is my faith, church. Hallelujah. अब पहले एक बात बताना चाहता हूं कि इस्राएलियों ने मन्ना नहीं मांगा था, because they don't know what is a manna, how looks the manna, how taste is manna. They don't know about the manna, but God given manna to Israelite by Himself. वो खुद से खुद से अपने आप से उसने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया। आमीन। समझ में आ रहा है ब्रदर सिस्टर? माय गॉड इज रेडी टू फुलफिल योर नीड्स। या प्रभु तैयार है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्या आप तैयार हो पाने के लिए? आमीन। Many people, many believers even, they're expecting from the people, they're expecting from the men. Hallelujah. But I would suggest to you, church, I encourage you, मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ, don't expect from the men, expect from the God, because our provisions comes from the heaven, church. Hallelujah. Our fulfillment comes from the heaven. Our needs, completion comes from the heaven, church. हमारी जरूरत हमारा पुरोटा वहां से आता है, because he is the Jehovah Jireh, वो यहोवा ही है जो हमारी जरूरतों को पूरा करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए जब चढ़ाने के लिए तैयार हुआ और चढ़ा रहा था, बलि दे रहा था, स्वर्गदूत ने अब्राहम का हाथ रोका, उसने कहा कि मत उसको बलि मत चढ़ा, लेकिन उसके बदले में उस भेड़ को बलि चढ़ा जो एक झाड़ियों के बीच में उसके सींग फंसे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पहाड़ के ऊपर वो झाड़ आया कहां से? हालेलुया। बिकॉज मोरिया पहाड़, वहां पे एक भी पेड़ नहीं है, बिकॉज वो गल्फ कंट्री और रेगिस्तान में। सेकेंड थिंग, वहां पे वो भेड़, एक ही भेड़ आया कहां से? हालेलुया। वो एक ही भेड़ आया कहां से? मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, वो भेड़ उस मोमेंट, उस क्षण परमेश्वर ने उस समय उस भेड़ को भेजा, वो इसहाक की जगह पे बलि होने के लिए। हालेलुया। जब बाइबल कहता है, जब अब्राहम तैयार हुआ परमेश्वर को देने के लिए, परमेश्वर ने अब्राहम से भी बढ़कर उसने अपना आशीष अब्राहम को दिया। कम ऑन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो बाइबल कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग तुमसे अच्छा बर्ताव करें, तो तुम भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। बाइबल कहता है, हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग तुमसे प्रेम करें, तो तुम भी लोगों से प्रेम करो। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर उससे कहीं गुना ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर को हम 10 रुपए देते हैं, परमेश्वर 10 रुपए के बदले 10 रुपए नहीं देता, परमेश्वर 10 रुपए के बदले 100 रुपए देता है, 1000 रुपए देता है। कम ऑन, हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च?
परमेश्वर 10 रुपए के बदले 10 रुपए नहीं देता, परमेश्वर 10 रुपए के बदले 100 रुपए, 1000 रुपए देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना आप चाहते हो उससे ज्यादा प्रभु आपको देगा। जितना आप करते हो उससे कहीं गुना ज्यादा प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। ये बट उसके पहले कि आप तैयार हो। हालेलुया। आज आपको तैयार होना चाहिए। आपको अलौकिक आशीष, चंगाई, समृद्धि, सामर्थ देने को परमेश्वर तैयार है। He is ready to give a supernatural blessing, healing, deliverance in your life, in your family, in Jesus' name. Get ready to receive in the name of Lord. Come on, say after me, I'm receiving in the name of Lord Jesus. Say after me, I'm receiving in the name of Jesus. My God is ready to complete your needs. He is ready to fulfill your needs, church. He is ready to give you the blessings, healing, prosperity, joy, peace in your life. Amen. प्रभु तैयार है आपको देने के लिए। Come on. Hallelujah. Church, that is not your will, but that is God's will. God wants to give you a supernatural things in your life. ये आपकी इच्छा नहीं है, बल्कि परमेश्वर आपको अलौकिक चीजें देना चाहता है। What is the anointing? What is anointing? Anointing is the supernatural things. What is the gifts of the Holy Spirit? It is the supernatural things. What is the authority? It is the supernatural things. What is the power? It is supernatural things. What is the to be a servant of Lord Jesus, to be a pastor, to be a prophet, to be a evangelist? That is supernatural things. Hallelujah. This is not naturally, this is supernaturally, because without supernatural power, we couldn't do this kind of the miracle, we couldn't do this kind of work. Hallelujah. God gives us supernatural things. परमेश्वर हमें अलौकिक चीजें देना चाहता है। अभिषेक अलौकिक चीजें, सामर्थ अलौकिक चीजें, वरदान अलौकिक चीजें, अधिकार अलौकिक चीजें, ये सारी चीज अलौकिक है। महिमा अलौकिक चीज है, चंगाई देना अलौकिक चीज है, लोगों को आशीष देना अलौकिक बात है, भविष्यवाणी करना अलौकिक बात है। ये सारी चीजें अलौकिक है। ये तुम्हारी इच्छा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर तुम्हें अलौकिक देना चाहता है। कब तक? जब तक आप स्वर्ग में उसका काम पूरा किए बगैर आप स्वर्ग में नहीं जाते हो, तब तक परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता रहेगा। हर दिन प्रभु तुम्हारी जरूरतें यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आई एम प्रोफेसाई ओवर यू, आज के दिन से आपके जीवन में किसी भी चीजों की घटी ना रहेगा, किसी भी चीजों की कमी नहीं रहेगी। माय गॉड shall provide everything what you have required every day in your life in Jesus' name. Hallelujah. My God shall provide everything in your needs. My God shall fulfill your needs in your life in Jesus' name. Come on. From today's onwards, you cannot see lack in your family, in your life. तुम अपने जीवन में कोई भी कमी घटी को नहीं देखोगे यीशु के नाम में। अपने परिवार में, अपने जीवन में कमी घटी को नहीं देखोगे। आज के बाद से आपके घर में कोई भी अनाज कम नहीं रहेगा। आज के बाद आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैं आपसे कहता हूँ हालेलुया, ला बरोद शकेला रखोतिया दे ले रही अंदी ला राबा। God is providing the electronic things, maybe you want television, you want fridge, maybe you want washing machine, maybe you want electronic things, maybe you want laptop, mobile, whatever is it. My God shall provide your needs in Jesus' name. Hallelujah. You want job, my God shall provide your needs with new job, with new salary, big salary job. My God shall provide you, church. मेरा परमेश्वर तुम्हें पूरा करेगा। हालेलुया। मैं जॉब चाहिए, प्रभु देगा। तुम्हें बच्चे चाहिए, प्रभु देगा। तुम्हें शांति चाहिए, प्रभु देगा। तुम्हें चंगाई चाहिए, प्रभु देगा। तुम्हें आशीष चाहिए, प्रभु देगा। तुम्हें वरदान चाहिए, प्रभु देगा। तुम्हें अभिषेक चाहिए, प्रभु देगा। तुम्हें सामर्थ चाहिए, प्रभु देगा। महिमा चाहिए, प्रभु देगा। अधिकार चाहिए, प्रभु देगा। तुम्हें लोगों के लिए प्रार्थना करने का वरदान चाहिए, प्रभु देगा। प्रभु का राज्य बढ़ाने का वरदान चाहिए, प्रभु देगा। हालेलुया। बिकॉज माय गॉड सप्लाई our need, church. हमारी अपनी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। Amen, amen. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. That is not your will, that is God's will. He wants to provide
supernatural things in your life. That is, remember what I'm saying, church. ये बातों को याद रखो जो मैं कह रहा हूँ. Come on, hallelujah, hallelujah. क्योंकि मनुष्य अनजान है अलौकिक बातों से, क्योंकि आदम ने ये सारी अलौकिक बातें खोल दिया पाप करने की वजह से. Many people they couldn't understand the supernatural thing. बहुत सारे लोग अनजान है, उनको नहीं पता है अलौकिक चीजें क्या है. Even many believers, many baptized people, they don't know about the supernatural thing, church. बहुत सारे उद्धार पाए हुए लोग, बैप्टिज्म लिए हुए लोग, उनको ही पता नहीं कि अलौकिक चीजें क्या है. Hallelujah. How do you understand what I'm saying? आपको समझ में मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर आदम को भी वो महिमा दिया, आदम को भी अधिकार दिया, आदम को भी वो सामर्थ दी, आदम को भी उसने वो सब कुछ दिया जो आदम के पास शुरुआत में था. लेकिन जब when he did sin, जब उसने पाप किया, वो सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यह है कि वो सामने से आपको देना चाहता है. ये परमेश्वर का अनुग्रह कि वो सामने से खुद से वो आपको देना चाहता है, वो खुद से आपको देना चाहता है. Come on. वो खुद से वो सारी चीज जो आदम ने जो खो दी थी, आदम ने जो गवा दी थी, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा वो आपको फिर से देना चाहता है. वो सब कुछ, वो महिमा, वो जो आदम के पास थी वो देना चाहता है. वो अधिकार, वो अभिषेक वो आपको देना चाहता है. परमेश्वर ने कहा आदम को और हव्वा को, इस पृथ्वी पे अधिकार जताओ, इस सारे प्राणियों के ऊपर अधिकार जताओ, और इस पृथ्वी पे तुम बढ़ो और आशीषित हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ. वही आशीष परमेश्वर आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मुझे देना चाहता है. Amen. But when church, you need to be with Jesus. आपको यीशु के साथ होने की जरूरत है. आप बोलोगे नहीं, मैं सिर्फ प्रार्थना में आऊंगा, प्रार्थना में आऊंगी, मैं सिर्फ विश्वास करूंगी, मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे रिश्तेदार है, मेरा परिवार है, मेरे समाज है, मेरा ये है, मेरा वो है. तो सॉरी बॉस, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है. Straightly I want to tell you, हालेलुया. नहीं, मेरा समाज क्या बोलेगा, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरा परिवार क्या बोलेगा, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरा सास ससुर क्या बोलेंगे, मेरा पति क्या बोलेगा, मेरी पत्नी क्या बोलेगी, मेरे माता पिता क्या बोलेंगे, अगर मैं यीशु पर विश्वास करूंगी, यीशु को मैं अपने जीवन में स्वीकार करूंगी. मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे गाँव वाले क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरा समाज क्या बोलेगा. मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर तुम इन लोगों की परवाह कर रहे हो तो तुम अलौकिक बातों से दूर हो. चर्च, तुम अलौकिक बातों से, अलौकिक आशीषों से दूर हो. लेकिन अगर तुम इन सारी चीजों की परवाह न करते हो, प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में स्वीकार करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ब्रदर सिस्टर, आप बहुत ही जल्दी अलौकिक बातों को आप देखोगे, अलौकिक चीजों को, अलौकिक बातों को अपने जीवन में अनुभव करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में. कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया. मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे पति पत्नी, हमारे सास ससुर, हमारे भाई बहन, ये जब तक इस पृथ्वी पे जीवित है तब तक वो हमारे साथ है. मरने के बाद खत्म, हमारा रिश्ता खत्म. लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, इनका रिश्ता, ये लोगों का रिश्ता हमारे साथ जब तक हम इस पृथ्वी पे तब तक है. लेकिन मरने के बाद हमारा रिश्ता प्रभु के साथ युगानुग होना चाहिए. चर्च, उसके लिए आज हमें इन लोगों की परवाह न करते हुए प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना है. हालेलुया. मैं जानता हूं कि शुरुआत में बहुत सारी तकलीफ आती है, मैं जानता हूं शुरुआत में बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं. इवन मैं जब प्रभु में आया, मेरे जीवन में प्रॉब्लम थी. मेरे घर वाले विरोध करते थे, मेरे रिश्तेदार विरोध करते थे, मेरी निंदा करते थे. दे कंडेम मी, they persecuted me, church. they mock me, church. उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे ऊपर हंसे, मुझे दोष लगाया, मेरी निंदा की हुए उन्होंने. बट आज वही लोग प्रभु यीशु मेरे पास प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आते हैं प्रभु यीशु के नाम में. हालेलुया. I'm not bothered about my relatives. I'm not bothered to my family, for my relatives, what people will say, what people will think about me, about my family, what they will say against me, against my family. I never bother about that, church. Hallelujah. Because I knew it. I'm following that God, that He is a living God, He is a live God. He has the authority to take me into heaven, church. Come on. उसके पास वो अधिकार है जो स्वर्ग में मुझे लेके जाएगा. मैं जानता हूँ उस परमेश्वर पर, उस प्रभु विश्वास कर रहा हूँ जो स्वर्ग में रहता है, वो जीवित परमेश्वर है, जो सृष्टि करता है. वाव.
जो सृष्टि करता है उस परमेश्वर को विश्वास करता है। और जब मेरे प्रभु के पीछे चलने की कोशिश किया, आई सॉ इन माई लाइफ सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, इन माई मिनिस्ट्री को मैंने देखा मेरे जीवन में अलौकिक आशीषों को, अलौकिक बातों को मैंने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने मेरे कलीसिया में मैंने देखा। आई थैंक गॉड, गॉड हैज ब्लेस्ड मी with the wife, with the family, with the ministry church, with the children. Hallelujah. Are you getting what I'm saying, church? It's not a big thing what you are receiving from the Lord. That is a big thing is what you are sacrificing for the Lord. ये बड़ी बात नहीं कि आप परमेश्वर से क्या ले रहे हो, बड़ी बात ये है कि आप प्रभु को क्या दे रहे हो। Hallelujah. Sometimes God never expecting from us. कभी भी प्रभु हमसे उम्मीद नहीं करता है, कुछ आशा नहीं करता है, फिर भी हमें देता है चर्च। Why? क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे हमसे प्यार करता है, और तब वो हमें हमारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है कि वो हमें अलौकिक बातों को देना चाहता है। मैं आज मैं जो भी मेरे भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं इस समय फेसबुक के जरिए, इस समय मुझे जो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ प्रभु पर अपनी जरूरतें के लिए विश्वास मत करो। आपकी जरूरतें पूरी होगी। बाइबल कहता है मत्ती के 6वें अध्याय में आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर, इफ यू सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, दिस ऑल थिंग्स शैल एडेड इनटू यू चर्च। जब उसके धार्मिकता को, उसके राज्य की जब आप खोज करते हो, उसके पीछे चलते हो, ये सारी चीजें तुम्हारी जरूरतें पूरी होगी, तुम्हारी सारी चीजें तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। सबसे पहला, तुम प्रभु के ऊपर तुम्हारी जरूरत के लिए नहीं आना है, बल्कि प्रभु के पास इसलिए आना है कि जो प्रभु के पास जो अलौकिक चीजें हैं, अलौकिक बातें हैं, वो पहला पाओ। मैं आपसे कहता हूं, इफ यू हैव एन अनॉइंटिंग, आई जस्ट वांट टू टेल यू, आप कहीं भी हाथ रखो, सक्सेस आपको मिलेगी यीशु के नाम में। Hallelujah. How do you understand what I'm saying? अगर आपके पास अभिषेक है, आप कहीं भी हाथ रखो, आप कहीं भी जाओ, सफलता, victory is yours, success is yours, victory is yours. Hallelujah. If you have authority, if you are right, the more thing, if the Lord is with you, wherever you go, He will give you success, victory. Hallelujah. Wherever you go, church, if the Lord is with you, if the Emmanuel is with you, if the Almighty God is with you, whatever you do, you will see the success. आज आप सफलता को देखोगे, अब प्रभु अगर आपके साथ हो, सब कुछ ठीक है। Hallelujah. How do you understand, church? That's how our Lord Jesus, like God is ready to fulfill your needs. Amen. मन ने इस्राएलियों ने नहीं मांगा था, बल्कि परमेश्वर ने खुद से स्वर्गदूत का खाना, एक अलौकिक खाना इस्राएलियों को दिया। अगर परमेश्वर व्यवस्था के समय में इस्राएलियों को अलौकिक खाना खिला सकता है, तो चर्च आज हम अनुग्रह के समय में है, तब परमेश्वर हमें आज अलौकिक बातों क्यों नहीं देगा, अलौकिक बातें क्यों नहीं देगा। व्यवस्था के समय, that was in the Lord time, hallelujah, the God given the supernatural food to the Israelites, and now we are living in the grace. हम अनुग्रह में जी रहे हैं, हम नए नियम में जी रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा क्यों नहीं करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? अगर जुना नियम में परमेश्वर उन्हें स्वर्गीय खाना दे सकता है, तो नए नियम में अनुग्रह के समय में परमेश्वर हमें, आपको, मुझे वो अलौकिक खाना, अलौकिक बातों से आशीष क्यों नहीं करेगा चर्च? क्यों नहीं करेगा? Because my God is ready to fulfill your needs. He's ready to fulfill with the supernatural things, from the heavenly things, church. He's ready to give everything in your life, whatever you have requirement in your life, church. Come on. But before that, you should understand. You should know how is your God. How is He? Hallelujah. You should know first. Amen, Lord. Hallelujah. That is not your will. That is the God's will. He wants to give you. Why? Why God wants to give us? That is the question.
क्यों प्रभु देना चाहता है? प्रभु इसलिए हमें आपको मुझे इसलिए देता है ताकि हम भी दूसरों के लिए आशीष का काम करें। हम भी प्रभु हमारे द्वारा दूसरों को भी देना चाहता है। चर्च, come on, hallelujah. That is not your will, that is God's will. God want to give you. क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया? ताकि आज इस्राएलियों को देखकर, इस्राएलियों के वचन को, इस्राएलियों के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया, उस काम को देखकर, उस बातों को सुनकर, पढ़कर हमारे अंदर विश्वास आए और हम भी परमेश्वर से अलौकिक बातों को क्या करें? आशा करें। अलौकिक बातों को क्या करें? मांगे। अगर परमेश्वर इस्राएलियों को दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। परमेश्वर उनके साथ काम कर सकता है तो आपके जीवन में भी काम करेगा। परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं तो प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रभु उसको चंगाई दे सकता है तो प्रभु आपको भी चंगाई देगा। कम ऑन। कब तक? जब तक आप प्रभु के घर नहीं जाते, जब तक आप स्वर्ग में नहीं जाते, तब तक प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा यीशु के नाम में। कम ऑन, हालेलुया। कब तक तुम्हारी जरूरतें पूरी होगी? जब तक आप स्वर्ग में नहीं जाते। आमेन। कम ऑन, से आफ्टर मी। हालेलुया। Hallelujah. So church, today just I'm sharing the part 1. Tomorrow again I'm going to share the part 2 about the God is ready to fulfill your needs. So इस आज मैं भाग 1 प्रचार कर रहा हूँ, कल मैं भाग 2 प्रचार करूँगा, पार्ट 2 प्रचार करूँगा। मैं आज यहाँ तक ही रुकते हैं कि परमेश्वर हमें अलौकिक बातें देना चाहता है, अलौकिक चीज़ें हमें देना चाहता है, अलौकिक वस्तुओं से हमें आशीष करना चाहता है। कल हम फेसबुक लाइव के जरिए में पार्ट 2 आपके बीच में शेयर करूँगा। अभी अलौकिक बातें क्या है, प्रभु हमें क्या देना चाहता है, हालेलुया। वो बनना क्या है, आज के दिन का बनना क्या है, वो सारी बातें मैं कल आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ कल आप मेरे साथ फिर से ज्वाइन करें। अभी समय मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आप सारे लोग आशीष पाए। ओ हालेलुया। लाबर रोको तुशाखिला। कम ऑन, हालेलुया। दीला रबे देखो तलाबर। हालेलुया। आपने अब तक देखा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना किया। अभी नए नियम में परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? आपको क्या देना चाहता है? मुझे क्या देना चाहता है? और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उनको क्या देना चाहता है? मैं आपको आगे मैं कल आपको इसके बारे में बताऊंगा। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। पिता तुझे धन्यवाद देते इस समय हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। इन सारी बातों को, इन सारे वचनों को प्रभु इनके हृदय में प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं सील करता हूँ। कोई भी शैतान, कोई भी दुष्शक्ति के हृदय से वचन को चुरा ना पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके अंदर विश्वास को बढ़ा, इनके अंदर तेरी प्रभु तेरे सामर्थ को बढ़ा पिता। तेरे विश्वास उनके अंदर आए प्रभु। तेरे लहू से सारे वचन, सारे संदेश को मैं तेरे लहू से उनके हृदय में सील करता हूँ पिता। देखो आशीष कर प्रभु इन लोगों को, प्रभु आत्मिक कान खुल जाए, उन्हें समझ दे कि प्रभु अलौकिक खाना, अलौकिक आशीष, अलौकिक बातें जो स्वर्ग से आती है उन्हें मिलने दे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु तेरे तेरे बेटे को जो इस समय देख रहे, सुन रहे पिता, उन सभी को तू छू ले, उन्हें आशीर्वादित कर प्रभु। उन्हें चंगाई मिले, उन्हें आशीष मिले, उनको शांति मिले उनके जीवन में, उनको जॉब मिले, उनको बच्चे मिले, जिनकी शादी नहीं उनकी शादी, उनके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर आए प्रभु यीशु के नाम में। जिनकी शादी बहुत सालों से शादी हुई लेकिन शादी में उनके पति पत्नी में जो भी अनबन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु डिस्टेंस है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन दोनों के बीच में आप रहिए पिता। उनके शादी को प्रभु आशीर्वादित कर। हालेलुया। उनके शादी को तो आशीष कर और प्रभु उनके शादी के द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण बना प्रभु। उनका टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ जाए। उनके बच्चों में प्रभु तेरे भय, तेरा वचन, तेरी समझ, तेरा ज्ञान उनके अंदर आए प्रभु यीशु के नाम में। उनके घर में शांति और समाधान रहे। हर एक बंधन, हर एक श्राप में तोड़ता हूँ, हर एक जादू टोना की दुष्टात्मा को मैं तोड़ता हूँ, हर एक मूर्ति पूजा की दुष्टात्मा को मैं तोड़ता हूँ, हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर एक काला जादू, ब्लैक मैजिक, हर एक शैतानी शक्ति को, अंधकार की शक्ति को मैं बांधता प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके घर से शैतान के काम नष्ट हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक शैतानी बुनियाद जो उनके जीवन में प्रभु है, वो बुनियाद और नींव और फाउंडेशन गिर जाए और परमेश्वर स्वर्गीय बुनियाद, परमेश्वर की ओर से वो फाउंडेशन उनके जीवन में, उनके परिवार में आ जाए प्रभु यीशु के नाम में।
हर एक शैतान के काम उनके जीवन से, उनके परिवार से जल के राख हो जाए। और प्रभु परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा का काम उनके जीवन में आज से अभी से उनके जीवन में शुरू हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं उनके पैसों के ऊपर, उनके अनाज के ऊपर मैं आशीष, उन्नति और बरकत को बोलता प्रभु यीशु के नाम में। उनके जॉब को आशीष बोलता हूं, उनके बिजनेस के, उनके हाथों के कामों को मैं आशीष बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें शारीरिक, आत्मिक और प्रभु आर्थिक आशीष, प्रभु आशीष दे, उन्नति दे प्रभु यीशु के नाम में। हर एक कमजोरी, हर एक शरीर का दर्द, हर एक बीमारी, हर एक सूजन, हर एक घुटनों का दर्द, हर एक गांठ, हर एक बीमारी उनके शरीर से, उनके जीवन से चली जाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु तू देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, तू अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, तू महिमा देने वाला, वरदान देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूं जो प्रभु उद्धार पाना चाहते हैं उद्धार उन्हें मिले, जिनको अभिषेक चाहिए उनको अभिषेक मिले, जिनको वरदान चाहिए उनको वरदान मिले, जिनको प्रभु तेरा ज्ञान चाहिए उन्हें ज्ञान मिले, जिनको रेवलेशन चाहिए उनको रेवलेशन मिले प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु तेरे लोगों को तू इस समय छू ले, जो इस समय मुझे देख रहे, सुन रहे, तुम सभी को तो आशीष का पिता, तेरी महिमा के लिए सारी महिमा, सारा आदर, जलाल, गौरव आप ही को मिले। और प्रभु इस संदेश के द्वारा लोग आशीष पाए, उनके घर में प्रभु मिराकल मनी, अलौकिक मनी, उनकी सारी जरूरतें और जो मांग रहे प्रभु, जो भी प्रार्थना कर रहे प्रभु, स्वर्ग से अलौकिक रीति से, जैसे तूने इस्राएलियों को 40 वर्ष मन्ना खिलाया पिता, उसी तरह प्रभु जब तक हम और तेरे लोग प्रभु तेरे वाचा के देश यानी स्वर्ग में, तेरे घर में हम जब तक नहीं आएंगे तब तक प्रभु तू हमारी जरूरतों को हर दिन पूरा कर रहा है और करता रहेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु इन लोगों की हर एक जरूरतें हर दिन पूरी हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत ताय रूप से आशीष कर, सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल आप ही को मिले। आप बड़े और हम कहते प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। सो चर्च, आई एम सो हैप्पी, आई सेंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की स्तुति हो। मैं कल आपके बीच में इसका पार्ट 2 आपको मैं शेयर करूंगा। सो प्लीज़ कल आप मेरे साथ जुड़िए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वॉच पार्टी करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें या अपने रिलेटिव्स को भेजें और उन्हें प्रभु का वचन सुनने दीजिए। और उनके अंदर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु उनके वचन के द्वारा उनके अंदर विश्वास बढ़ेगा और वे प्रभु में आशीष पाएंगे। ओके, सो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री। आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो को हम यूट्यूब पे हम अपलोड करें तब आप उसको देख पाएँ। तो हमारे वीडियोस को आप यूट्यूब पर भी आप देख सकते हो। तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर जाके हमारी वीडियोस को आप देख सकते हो। और आपकी जो भी गवाही, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आप प्रभु ने आपका वचनों के द्वारा, संदेश के द्वारा, मैसेज के द्वारा, ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री के द्वारा अगर प्रभु ने आपको आशीष की है तो प्लीज़ माय ब्रदर सिस्टर आप आपके एक्सपीरियंस को शेयर करें। और दूसरी बात, जैसे मैं प्रेयर कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह प्रभु ने मुझसे बातें किया। मैं चाहता हूँ कि अगर प्रभु आपके हृदय में कुछ डालता है तो आपका बीज, आपका सीड, आपके प्रेशियस सीड, प्रेशियस बहुमूल्य बीज, आपका ऑफरिंग, आपका जो भी ऑफरिंग है वो आप ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप बो सकते हो, सो सकते हो। यू कैन सो इन द ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्रीज your precious seed, and we will pray for you, church, and we are praying. If you sow or not doesn't matter, but still we are praying for you, church. Hallelujah. But if the Holy Spirit putting in your heart, church, so you can sow in the Grace Fellowship Ministry. If you want to sow, अगर आप बोना चाहते हो, आपके सीड को बोना चाहते हो, you can contact you can see the contact WhatsApp number under the description. Then you can call us. You can ask the details of the bank account. We can provide to you. हम आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री का। और अगर आप बोते हो तो डेफिनेटली प्रभु आपको उसका 100 गुना, 1000 गुना उसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। Because many people were blessed through the GFM, Grace Fellowship Ministry. And if you want to be blessed in the family, in your life, you can sow your seed into GFM and see how God bless you and bless your family, church. कैसे परमेश्वर आपके परिवार को, आपके जीवन को प्रभु आशीष करता है। आप बो के देखिए, प्रभु आपको आशीष करें।
हालेलुया, दैट इज योर चॉइस। वी कैन नॉट फोर्स यू चर्च, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपकी प्रभु, आप अगर पवित्र आत्मा आपके हृदय में डालते आप प्रभु के राज में बोल सकते हो। ओके, सो गॉड ब्लेस यू। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज सेंड अस। जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। तो आप सभी को आशीष करें। आपकी जो भी गवाही है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, आपकी गवाही हमारे साथ शेयर करें प्रभु की महिमा के लिए। ओके, और प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून, बाय बाय।